بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پارس کے چور خیالات کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا پڑھ نہیں سکتا تھا، اس لیے شیتارا چپ چاپ اس کے اندر جاتی تو ناکام واپس آتی۔ اسے تربیت کے اس مرحلے پر صرف ذہانت سے سمجھنا تھا اور وہ چند گھنٹوں میں اپنی ذہانت کا ثبوت دے کر مجھ سے داد وصول کرنا چاہتی تھی۔ وہ 10 منٹ کے بعد پھر برین ایڈم کے سیکرٹری کے پاس آ گئی۔ وہاں الپا نے آ کر کہا، میں نے بڑی سختی سے احکامات صادر کیے ہیں، تمہارے بینجامن فرائیڈ کی تصویریں ہر جاسوس اور ہر پولیس اسٹیشن تک پہنچائی جائیں گی اور تم آدھے گھنٹے بعد ٹی وی اسکرین پر اپنے گمشدہ بینجامن کی تصویر دیکھ سکو گی اور یہ اعلان سن سکو گی کہ اسے تلاش کرنے والے کو $1,00,000 دیے جائیں گے۔ شیتارا نے کہا، میں تمہاری مشکور ہوں، تم میرے بینجامن کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے اپنے تمام ذرائع استعمال کر رہی ہو۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تمہارے بھی کسی مشکل وقت میں بہت کام آؤں گی۔ ہمارے لیے تو مشکل وقت یہی ہے کہ تمہاری تنظیم کے سربراہ اور ہمارے اعلیٰ حکام کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی، بہت سی غلط فہمی دور ہو جاتی، پھر مفاہمت اور دوستی کی راہیں ہموار ہونے لگتیں۔ شیتارا نے کہا، میں نے اس سلسلے میں اپنے سربراہ سے گفتگو کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی حکام مکمل تعاون نہیں کر رہے ہیں، نصف تعاون یہ ہو رہا ہے کہ وہ ابلاغ کے تمام ذرائع سے یہ تسلیم کریں گے کہ MIM کے سربراہ نے تل ابیب آنے کے سلسلے میں کوئی فراڈ نہیں کیا۔ وہ دشمنوں کی چال تھی، لیکن تم لوگ سپر ماسٹر کو دشمن کے طور پر پسند نہیں کرو گے۔ یہ اسرائیلی حکمت عملی ہمارے سربراہ کو پسند نہیں ہے۔ الپا نے کہا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ ہمارے ملک کی سیاسی مجبوری ہے، ہمیں اپنی بقا کے لیے سپر ماسٹر کو دوست بنائے رکھنا ضروری ہے۔ میں نے تمہاری اس سیاسی مجبوری کا ذکر کیا تھا، لیکن ہمارا سربراہ وہی کہتا ہے جو میں پہلے کہہ چکی ہوں، یعنی تم امریکیوں کو دوست بنائے رکھو، ہم تو انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہاں اسرائیل میں رہنے والے امریکیوں کا جینا 2 بھر کر دیں گے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ تمہارا سربراہ چاہے تو ان سے امریکہ میں انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ ایسا یہاں کیا جائے گا تو ہماری حکومت کو نقصان پہنچے گا۔ تم درست کہتی ہو، ہمیں تم لوگوں سے نقصان نہیں پہنچا ہے۔ وہ مائک ہرارے فراڈ سربراہ بن کر ہمیں بدنام کرنے آیا تھا۔ اگر تمہاری حکومت اس مائک ہرارے کو ہمارے حوالے کر دے تو ہمارا سربراہ تمہارے اعلیٰ حکام سے گفتگو کرنے اور آپس میں دوستی اور سمجھوتے کی راہیں نکالنے کو تیار ہو جائے گا۔ الپا نے کہا، مائک ہرارے کو تو ہم امریکہ کے بھی حوالے نہیں کریں گے، وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور ایسا غیر معمولی علم رکھنے والے مقدر ہی سے ہاتھ آتے ہیں۔ مائک ہرارے ہمارے لیے ایسا قیمتی سرمایہ ہے جو سپر ماسٹر کی غلط پلاننگ کے باعث ہمارے شکنجے میں آ گیا ہے۔ پلیز اپنے سربراہ کو سمجھاؤ کہ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کا مطالبہ نہ کرے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا بینجامن ہمارے ملک میں ابھی تک ہے تو میں اسے صبح تک تلاش کر کے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ تم نہیں جان سکتی کہ میں بینجامن کے لیے کیسی دیوانی ہو رہی ہوں۔ اگر وہ تمہارے ذریعے ملے گا تو میں اپنے سربراہ سے تمہاری باتیں منوانے کے لیے لڑ پڑوں گی، کسی بھی طریقے سے اسے مجبور کر دوں گی کہ تمہارے اعلیٰ حکام سے رابطہ کرے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بینجامن کو کسی طرح تلاش کر لوں گی۔ تم اپنے اور ہمارے اکابرین کو کسی طرح مذاکرات کی میز پر لے آؤ۔ بائی دا وے، تمہارے بینجامن کے سلسلے میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ ضرور پوچھو۔ تمہارا سربراہ اور تنظیم کے تمام مجاہدین ہم یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ تم ایک یہودی بینجامن کو دل و جان سے چاہتی ہو اور یہاں اسے تلاش کرتی پھر رہی ہو؟ ہماری کوئی بات سربراہ سے چھپی نہیں رہتی۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور مختلف ذرائع سے ہماری مصروفیات کا علم رکھتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری اور اس یہودی کی محبت محض اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ میں بینجامن کو مسلمان کرنے والی ہوں۔ پھر تو بینجامن تمہیں ہر حال میں ملنا چاہیے۔ تم ایک یہودی کو مسلمان بناؤ گی تو اپنے سربراہ کو خوش کر سکو گی۔ شیتارا نے ہنس کر کہا، تم ایک یہودی ہو کر ایسا کہہ رہی ہو؟ تم یہ بھی تو دیکھو کہ میں تمہاری جیسی مسلمان کو اپنی سہیلی بنا رہی ہوں اور تمہارے کھوئے ہوئے محبوب کو تلاش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے کتنی مخلص ہوں۔ بائی دا وے، ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھنے کے لیے پوچھنا ضروری نہیں ہے، جو چاہو پوچھو۔ کیا کوئی اور اہم بات ہے؟ ہاں، کیا پھر 1 گھنٹے بعد ملو گی؟ شاید اس وقت تک بینجامن کا سراغ مل جائے۔ شیتارا 1 گھنٹے بعد ملنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ الپا دماغی طور پر ایک بند کمرے میں حاضر ہو گئی۔ دوسرے کمرے میں برین ایڈم اور دوسرے ایڈم برادرز بیٹھے ہوئے تھے۔
जब भी अल्पा सेक्रेटरी के दिमाग में जाकर शितारा से बातें करती थी तो टेलीपैथी जानने वाला मोनेरो भी अल्पा के साथ वहां मौजूद रहता था। फिर उसके और शितारा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ब्रेन एडम वगैरह को सुनाता रहता था, और ब्रेन एडम वगैरह ये नहीं जानते थे कि एक्सरे मैन मार्टिन भी वहाँ ख्याल ख्वानी के ज़रिए मौजूद रहता है। उनका सबसे पुरस्कार सरबराह दाऊद मंडोला वहाँ नहीं था। वो टेलीपैथी जानने वाले टेरी एडम के साथ उस ऑपरेशन थिएटर में था जहाँ माइक हरारे का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। एक ज़बरदस्त चक्करबाजी के दायरे में हम सब घूम रहे थे। दाऊद मंडोला और टेरी एडम को ये मालूम नहीं था कि सलमान, सुल्ताना और जे मॉर्गन भी उस ऑपरेशन थिएटर में माइक हरारे के अंदर मौजूद हैं। जब वो यहूदी टेलीपैथी जानने वाले माइक हरारे को गफलत में रखते थे तो हमारे साथ खुद भी हरारे के दिमाग से निकल आते थे। ऐसे वक्त कुछ किया नहीं जा सकता था, और जब हरारे होश में रहता था तो हम सब उसके अंदर जगह बना लेते थे। यहूदी टेलीपैथी जानने वाले रफ्ता रफ्ता उसका लबो लहजा और शख्सियत बदल रहे थे, और सलमान वगैरह उसके अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियों को समझते जा रहे थे। टेलीपैथी एक दिमागी खेल है। इस खेल में भूल भुलैयाँ हैं। जो इस मैदान में आता है वो अगर ज़हीन है तो रास्ते हमवार करता जाता है, वरना भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। और मेरी ये दास्तान कारीन के लिए भी भूल भुलैयों से कम नहीं है। जो इसे तवज्जो से पढ़ते हैं वो नित नई दिमागी कलाबाजियों को समझकर लुत्फ़ हासिल करते हैं, और जो सरसरी तौर पर इसे पढ़कर गुजरते हैं वो महज इसके तमाम दिलचस्प किरदार और सहरज़दा करने वाले वाक़यात से दिलचस्पी लेकर टाइम पास करते हैं। मेरा ऐसा कहने का मकसद ये है कि अभी ज़रा उलझा हुआ दिमागी खेल जारी था। तिल अबीब के एक और ऑपरेशन थिएटर में एक डमी माइक हरारे तैयार हो चुका था। उसे चेहरे और जिस्मानी तौर पर हरारे बनाने के बाद उस पर तनवीमी अमल करके उसके अंदर हरारे की तमाम खुसूसियात नक्श की जा रही थीं। इसराइली हुक्काम सुपरमास्टर को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अमरीकी सदर से भी वादा किया था कि हरारे होश में आ जाएगा और सफ़र करने के काबिल हो जाएगा तो उसे अमरीका वापस भेज दिया जाएगा। और वापस भेजने के लिए वो डमी तैयार हो चुका था। उस डमी को सिर्फ टेलीपैथी नहीं आती थी, इसलिए तय पाया था कि टेरी एडम, टैलबोट और मोनारो बारी बारी उस डमी के दिमाग में हमेशा मौजूद रहेंगे। यूं सुपरमास्टर वगैरह शुबा नहीं कर सकेंगे कि वो एक डमी से बहल रहे हैं। शितारा और अल्पा ने फिर 1 घंटे के बाद सेक्रेटरी के दिमाग में मिलने का वक्त मुकर्रर किया था। इसके बाद अल्पा अपने बंद कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में ब्रेन एडम और दूसरे एडम ब्रदर्स के दरमियान आकर बैठ गई। फिर बोली, क्या मैंने सही लाइन पर MIM वाली से गुफ्तगू की है? ब्रेन एडम ने तायद में सर हिलाकर कहा, तुम बहुत अच्छी जा रही हो। मोनेरो हमें तुम दोनों की गुफ्तगू सुनाता रहा है। एक ब्रदर ने कहा, पता नहीं ये MIM की ख्याल ख्वानी करने वाली कौन है। वैसे कच्चा जहन लगता है। हमारी सिस्टर अल्पा इसे शीशे में उतार लेगी। अल्पा ने कहा, मैं यही कोशिश कर रही हूँ। इसमें तो शुबा नहीं रहा कि वो सचमुच यहूदी बेंजामिन की दीवानी है और उसे पाने के लिए हमारे साथ बड़े बड़े समझौते कर सकती है। और बड़ी बात यह है कि आइंदा मुझ पर अंधा एतमाद करने लगेगी। ब्रेन एडम ने कहा, तुमने बड़ी हद तक कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन हमारी असल कामयाबी ये होगी कि MIM के सरबराह से हमारे मुल्क के हुक्काम से मुज़ाकरात हो जाएं। उसका मुतालबा बहुत बड़ा है। अब वो फ्रॉड सरबराह बनने वाले माइक हरारे का मुतालबा कर रही है। हमने तो अमरीकी सदर का ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया। हम सुपरमास्टर को डमी माइक हरारे पेश करने वाले हैं। क्या हम MIM के सरबराह को भी एक डमी माइक हरारे पेश करके बेवकूफ़ नहीं बना सकते? एक ब्रदर ने कहा, ये तो बचगाना सी बात है। आखिर हम माइक हरारे की कितनी डमीज़ बनाएंगे? दूसरे ब्रदर ने कहा, अब हमारे पास काफ़ी टेलीपैथी जानने वाले हैं। फिर असली टेलीपैथी जानने वाला माइक हरारे भी, उसका भी इजाफा हो रहा है। ब्रेन एडम ने कहा, एक अहम बात यह है कि अगर हम माइक हरारे की एक डमी और तैयार करें और उस डमी के दिमाग में भी हमारे टेलीपैथी जानने वाले आते जाते रहें तो हम उस डमी की सूरत में अपने एक जासूस को MIM तंजीम के अंदर पहुंचा सकते हैं। ये बात सबके दिल को लग रही थी। मुजाहिदीन की वो नई तंजीम अमरीका और इसराइल के लिए दर्द सर बनी हुई थी। अचानक उन पर जैसे आसमान से टपक पड़ी थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि सरबराह कौन है, उसका हेडक्वार्टर किस मुल्क और शहर में है। उस तंजीम का एक मुजाहिद भी कैदी की हैसियत से उनके हाथ नहीं आया था। वो तंजीम एक आसेब की तरह थी जो डराती थी और नज़र नहीं आती थी। 24 घंटों के अंदर एक मुकम्मल डमी तैयार हो जाती थी, यानी किसी के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करने में वक्त लगता था। फिर उस पर तनवीमी अमल किया जाता था। उसे तनवीमी नींद पूरी करने का वक्त दिया जाता था। फिर उसे अच्छी तरह आजमाने के बाद मुतमईन होकर रेस के घोड़े की तरह मैदान में छोड़ा जाता था।
अल्पा ने ब्रेन एडम से कहा, आपकी प्लानिंग बहुत उम्दा है, मैं एक और इजाफा करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, तुम क्या चाहती हो? वो बोली, वो MIM की ख्याल ख्वानी करने वाली बेंजामिन के लिए बावली हो रही है। हो सकता है बेंजामिन समंदर में डूब गया हो या किसी कातिल ने उसकी लाश छुपा दी हो। तो मैं उस MIM वाली को तो मुतासर नहीं कर सकूंगी। मुझे अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए किसी बेंजामिन फ्राइड की एक डमी की ज़रूरत होगी। एक ब्रदर ने हंसते हुए पूछा, अल्पा, हम आज के इजलास में यहाँ बैठे डमी हजरात का मेला लगा रहे हैं। क्या वो MIM वाली उस डमी बेंजामिन के ख्यालात पढ़कर मालूम नहीं करेगी कि वो फ्रॉड है? कैसे मालूम करेगी? वो खुद कह रही थी कि उसे अपने महबूब बेंजामिन का दिमाग नहीं मिल रहा। मैंने भी बेंजामिन की तस्वीर वाली आंखों में झांक कर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की थी। वो वाकई कहीं गुम हो चुका है। अगर उसे मौत नहीं आई है और वो जिंदा है तो किसी दुश्मन ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है, उसकी बेंजामिन वाली शख्सियत को मिटा दिया है। ऐसे में वो MIM की ख्याल ख्वानी करने वाली डमी के दिमाग में जाकर तस्लीम करेगी कि बेंजामिन की सूरत शक्ल तो वही है, सिर्फ आवाज़, लहजा और शख्सियत बदल दी गई है। ब्रेन एडम ने एतराज़ करने वाले ब्रदर से कहा, आप हमेशा ये याद रखें कि हमें कई रास्ते बनाकर MIM तंजीम के अंदर घुसना है। हम माइक हरारे की डमी बना रहे हैं तो बेंजामिन की भी डमी बना सकते हैं। इस तरह हमारे 2 जासूस उस नई तंजीम के अंदर पहुंच जाएंगे। इस बहस में 1 घंटा गुजर गया था। अल्पा तमाम ब्रदर्स के पास से उठकर दूसरे कमरे में आ गई, दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंच गई। ऐसे ही वक्त शितारा भी आ गई। उसने कहा, अल्पा, तुम बहुत अच्छी हो। अभी 15 मिनट पहले मैंने टीवी स्क्रीन पर बेंजामिन की तस्वीर देखी और ये ऐलान भी सुना कि बेंजामिन को ढूंढ लाने वाले का इनाम $1,00,000 होगा। अल्पा ने कहा, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि मैंने अपने सरबराह से माइक हरारे के सिलसिले में बात की थी। वो कहता है कि तुम्हारे सरबराह की तरफ से ये यकीन दहानी हो जाए कि हमारे साथ दोस्ती की राहें हमवार होंगी तो वो टेलीपैथी जानने वाले माइक हरारे जैसे सरमाए को तुम्हारे सरबराह की खिदमत में पेश कर देगा। ये दानिशमंदाना समझौते वाली बात है। तुम्हारे सरबराह का ये जज्बा काबिल कदर है कि वो हमसे दोस्ती की खातिर एक ज़हीन टेलीपैथी जानने वाले को हमारे हवाले करेगा। मैं अभी अपने सरबराह से बात करने जा रही हूँ, आधे घंटे बाद आऊँगी। अल्पा ने कहा, एक और बात कह देना कि तुम्हारे सरबराह ने टीवी स्क्रीन पर माइक हरारे को ज़ख्मी होते देखा है। वो बेहोश भी हो गया था, लिहाजा इतनी जल्दी सफ़र के काबिल नहीं होगा। हम कल शाम तक उसे पेश कर सकेंगे। अल्पा ने यह कहकर राबता ख़त्म कर दिया। शितारा दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। अल्पा की किसी बात पर उसके दिमाग में रोशनी का एक छमाका सा हुआ, जैसे जहन रोशन हो गया हो और उसकी रोशनी में यह गुत्थी सुलझने वाली हो। वो गौर करने लगी कि अल्पा की किस बात ने उसे चौंकाया था। वो अल्पा के मुंह से निकले हुए फिक्रे को अपने जहन में दोहराने लगी। उसने शितारा से कहा था, तुम्हारे सरबराह ने टीवी स्क्रीन पर माइक हरारे को ज़ख्मी होते देखा है। शितारा ने भी स्क्रीन पर हरारे को गोली खाकर ज़ख्मी होते देखा था। गोली उसके बाजू के गोश्त को चीरती हुई निकल गई थी। ठीक इस तरह मेरे मशवरे के मुताबिक शितारा ने गोली चलाई थी और ठीक उस तरह एक गोली पारस के बाजू का गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। यानी वो दोनों माइक हरारे और पारस बिल्कुल एक ही तरह ज़ख्मी हुए थे। वो खुशी से उछलकर खड़ी हो गई। फिर उसने ख्याल ख्वानी के ज़रिए मुझे मुखातिब किया, पापा, आपने मेरी जहानत को आजमाने के लिए चंद घंटों का वक्त दिया था। अब मैं बताऊं कि आप एक बाप होकर अपने बेटे को क्यों ज़ख्मी कर रहे थे? मैंने कहा, हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। आप पारस को माइक हरारे की जगह पहुँचाने वाले हैं और माइक हरारे को किसी ब्रेन वॉशिंग रूम से बाहर लाकर उसे यहूदियों के पंजे से निजात दिलाने वाले हैं। मैंने कहा, शाबाश, तुमने हमारी ये चाल समझ ली और अपनी जहानत का सबूत दे दिया। आइंदा पारस यहूदी खुफिया तंजीम में माइक हरारे बनकर रहेगा। पारस टेलीपैथी नहीं जानता है, इसलिए मैं हमेशा उसके अंदर रहा करूँगी। बेशक तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास रहोगी, मगर मुसलसल दिन रात नहीं रह सकोगी। इसलिए हमारे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी उसके अंदर जाते आते रहेंगे। वो हमारी आजमाइश में कामयाब होकर बहुत खुश थी। उसने अल्पा के साथ होने वाली तमाम बातें बताईं। मैंने सुनने के बाद कहा, बेंजामिन फ्राइड नामी किसी शख्स का वजूद नहीं है, मगर अल्पा तुमसे दोस्ती कायम रखने की खातिर कल तक एक यहूदी बेंजामिन फ्राइड पैदा कर लेगी। मैं समझ रही हूँ वो मुझे मुतासिर करने, मुझे सहेली बनाकर मेरे करीब तर होने की कोशिश करेगी। मैंने बड़े भरपूर तरीके से उसे यकीन दिलाया है कि मैं बेंजामिन की दीवानी हूँ और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
हाँ बेटी, दुश्मन के झूठ को आजमाने के लिए ऐसे ही मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पारस तो अब बेंजामिन नहीं रहा, उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, वो माइक हरारे बन रहा है, लेकिन पासपोर्ट और वीज़ा के मुताबिक तिल अबीब में बेंजामिन फ्राइड मौजूद है। अब वो बेंजामिन वहाँ की यहूदी खुफिया तंजीम के मैटरनिटी होम में पैदा होगा और कल तुम्हारे पास पहुँचाया जाएगा। वो बोली, बेंजामिन की तरह वो लोग माइक हरारे की भी डमी पेश करेंगे और MIM के सरबराह को उस डमी के ज़रिए फ़रेब देना चाहेंगे। हाँ, उस पुरस्कार सरबराह से मिलने और मज़ाकरात करने के लिए वो बहुत बेचैन हैं। उसके साथ समझौते की राहें हमवार करने के लिए एक टेलीपैथी जानने वाले माइक हरारे को तोहफा बनाकर उसे पेश करेंगे। इस सिलसिले में एक अहम सवाल ये है कि MIM का सरबराह यहाँ आना पसंद करेगा या नहीं। मैंने कहा, वो भी कुछ अजीबोगरीब सरबराह है। हमने तैयारे के अगवा के वक्त उसके मुजाहिदीन की मदद की। तुम और पारस दमश्क में उसके काम आए। यहाँ तिल अबीब में एक फ्रॉड सरबराह का ड्रामा प्ले किया गया, लेकिन उसकी तरफ से कोई अमल और रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। वो बोली, ये बड़ी हैरानी की बात है। वो दुश्मनों से कुछ नहीं बोल रहा है और हम दोस्तों से उसे रस्मी तौर पर ही राबता करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम उसके मामले में पेश हैं। वो फ्रॉड सरबराह के सिलसिले में जो करना चाहता होगा वही हम कर रहे हैं। यानी हम बज़ाहिर खामोश रहकर इसराइल पर जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका ने फ्रॉड सरबराह का ड्रामा प्ले किया है। MIM का वो सरबराह कहीं बैठा हुआ मज़े से यह ड्रामा देख रहा है और इस मामले में कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझ रहा। पापा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि वो मज़े से बैठा रहे और हम सब MIM के मुजाहिदीन बनकर उसके काम करते रहें। इब्तदा से अब तक हिसाब करें तो यही बात सामने आती है जैसे MIM का कोई वजूद नहीं है। हम ही MIM के मुजाहिदीन बनकर सरगर्मियाँ दिखाते आ रहे हैं। मैंने हंसते हुए तायद की, हकीकतन किसी हद तक ऐसा ही हो रहा है, मगर ज़रा सब्र करो, वो ज़्यादा अरसे तक पर्दों के पीछे नहीं रहेगा। कोई भी इस्लामी मुल्क किसी वक्त इसराइल से कोई दोस्ताना मुआहदा करना चाहेगा तो वो उनके खिलाफ फिर मैदान अमल में आएगा। उसकी अब तक की कारकर्दगी यही जाहिर करती है कि वो मुमलिकत इसराइल के ख़िलाफ़ है और किसी भी इस्लामी मुल्क को उससे दोस्ती करने का मौका नहीं देना चाहता। अब इस मामले में क्या होगा कि ये लोग MIM के सरबराह से मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने अल्फा से कहा है कि नई तंजीम का सरबराह माइक हरारे का मुतालबा कर रहा है और ये यहूदी उसका मुतालबा भी पूरा करने को तैयार हैं। यह अलग ही बात है कि वो हरारे की डमी पेश करेंगे। इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका और इसराइल में और उनसे दोस्ती करने वाले तमाम इस्लामी ममालिक में MIM का नाम दिन रात गूंजता रहे और उन सब को अंगारों के बिस्तर पर लौटना पड़े। यही वजह है कि हमने एक फ्रॉड सरबराह को तिल अबीब भेजा। MIM से परेशान रहने वाले ममालिक तिल अबीब में सरबराह की आमद के बायस बहुत बेचैन रहे। जब फ्रॉड खुल गया तो हमारे मजबूर करने पर उन्होंने MIM की हिमायत में बयान दिया और आप बाप बेटे इस ड्रामे के पसे पर्दा बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। पारस माइक हरारे बनकर यहूदी खुफिया तंजीम में घुसने वाला है। पापा, आप लोगों की शातिराना चालों का जवाब नहीं है। बेटी, जब भी कामयाबी हासिल हो तो उसकी खुशी में मगन रहकर दूसरे फ़राइज़ को ना भूला करो। हमारा मकसद MIM को एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक बनाकर पेश करना है और आइंदा ऐसा करने के लिए फिर MIM के सरबराह को तिल अबीब पहुँचाना होगा। मैं अभी ये पूछने वाली थी कि इसराइली हुकाम की तरफ से टेलीपैथी जानने वाले माइक हरारे को तोहफे के तौर पर कबूल करने के लिए असल सरबराह आएगा या नकली। असली सरबराह तो कोई सांस डिकार नहीं ले रहा है, जैसे सचमुच हड्डियों का ढांचा बनकर खामोश हो गया हो, लिहाजा हमें ही कुछ करना होगा। मैंने अल्पा से कहा था कि आधे घंटे बाद आकर गुफ्तगू करूंगी और अपने सरबराह का फ़ैसला सुनाऊंगी। क्या ये फ़ैसला सुनाया जाए कि वो यहाँ आने के लिए राज़ी हो गया है और क्या उसकी आमद की तारीख भी बताई जाए। उसे कह दो कि वो 2 दिनों बाद 15 तारीख को आना चाहता है। कल सुबह तक ये तारीख कन्फर्म की जाएगी। वो चली गई। चंद लम्हों के बाद जे मॉर्गन ने मेरे पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, असली माइक हरारे पर तनवीमी अमल करके उसकी शख्सियत तब्दील की जा रही है। सलमान भाई उनके अमल को नाकाम बनाने के लिए हरारे के अंदर मौजूद हैं। क्या आप आना चाहेंगे? मैं जे मॉर्गन के साथ माइक हरारे के दिमाग में पहुंच गया। यहूदी टेलीपैथी जानने वाला टेरी एडम उस पर अमल कर रहा था। उसे अपना मामूल बनाकर उसके दिमाग से माइक हरारे की शख्सियत को भुला रहा था और ये बातें नक्श कर रहा था कि माइक हरारे ईसाई नहीं बल्कि एक कट्टर यहूदी है। अपने मुल्क और यहूदी कौम को हर तरह के फ़ायदे पहुंचाने के लिए अपने टेलीपैथी के इल्म को इस्तेमाल करता रहेगा। तनवीमी अमल के दौरान टेरी एडम उससे सवालात भी करता जा रहा था और सलमान उस मामूल बनने वाले हरारे की ज़ुबान से जवाबात देता जा रहा था
और टेरी एडम समझ रहा था कि वाकई मामूल बनकर जवाबात दे रहा है। इस तनवीमी अमल के दौरान सबसे अहम बात यह थी कि माइक हरारे को खुफिया यहूदी तंजीम का वफादार बनाया जा रहा था और माइक हरारे सलमान की मर्ज़ी के मुताबिक वफादारी का यकीन दिला रहा था। जब अमल ख़त्म हो गया तो उसे कम से कम 4 घंटे तक तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया गया। उसके बाद हरारे के दिमाग में खामोशी छा गई। अमल ख़त्म हो चुका था। टेरी एडम उसे नींद पूरी करने के लिए छोड़ गया होगा। सलमान वहाँ खामोशी से मौजूद रहा। वो तनवीमी अमल करने वाला शायद किसी वक्त आकर तस्दीक कर सकता था कि उसका मामूल वाकई गहरी नींद सो रहा है या नहीं। हम में से किसी को उसके दिमाग के अंदर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। सलमान और जे मॉर्गन ने पिछले 12 घंटों से बारी बारी उसके अंदर रहकर यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों को हरारे की ब्रेन वॉशिंग का मौका नहीं दिया था। इस अरसे में उन्होंने महसूस किया था कि हरारे के अंदर टेरी एडम के अलावा कोई और भी ख्याल ख्वानी करने वाला आता है। आखिरी बार तनवीमी अमल हो गया। टेरी एडम ने अपनी दानिस्त में माइक हरारे को कट्टर यहूदी और अपनी खुफिया यहूदी तंजीम का वफादार बना दिया। फिर उसे तनवीमी नींद सुलाकर चला गया तो कुछ देर बाद उसी दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, माइक हरारे, तुम अभी तनवीमी नींद पूरी नहीं करोगे, यह अमल अभी अधूरा है। तुम मेरी आवाज़ और लहजे को अपने जहन में नक्श करो। तुमने जिस यहूदी खुफिया तंजीम की वफादारी का अहद किया है, उस खुफिया तंजीम का असली सरबराह मैं हूँ। मेरी सोच की लहरें तुम्हारे दिमाग में आया करेंगी तो तुम इन्हें महसूस नहीं करोगे। वो एक्सरे मैन मार्टिन था। सलमान ने मेरे अंदर आकर कहा, भाईजान, ये तो मार्टिन रसल की आवाज़ सुन रहे हैं। इस मार्टिन रसल को एक बार मैंने अपना मामूल और ताबेदार बनाया था, फिर जनाब तब्रेज़ी साहब की हिदायत पर अमल करके इसे आज़ाद छोड़ दिया था। मैंने खुश होकर कहा, चलो ये भेद खुल गया कि खुफिया यहूदी तंजीम का सरबराह मार्टिन रसल है। वो एक्सरे मैन मार्टिन दरअसल टेरी एडम के दिमाग में रहा करता था। टेरी और दूसरे यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले अपने सरबराह की सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकते थे। टेरी एडम जब माइक हरारे पर तनवीमी अमल कर रहा था तो दरअसल अपने सरबराह एक्सरे मैन मार्टिन रसल की मर्ज़ी के मुताबिक ही कर रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता था कि हरारे पर दरअसल टेरी एडम ने नहीं, मार्टिन रसल ने तनवीमी अमल किया था। वो एक्सरे मैन मार्टिन थोड़ी देर तक हरारे के अंदर अपनी अहम हिदायत नक्श करता रहा, फिर उसे तनवीमी नींद पूरी करने के लिए छोड़ कर चला गया। अब उसे सो जाना चाहिए था। मैंने सलमान से कहा, हकीकतन हरारे पर कोई अमल नहीं हो सका है, इसका जहन थका हुआ है। थोड़ी देर इंतज़ार करो, फिर इसे 1 घंटे की नींद सुला दो। 1 घंटे के बाद ये बेदार होगा तो हम इस पर अमल करके इसके जहन में ये बात नक्श करेंगे कि ये पहले भी ईसाई माइक हरारे था, अब भी यही है। मैं उसे हिदायत देकर जाना चाहता था, फिर रुक गया। इस बार नई सोच की लहरें हरारे के अंदर सुनाई दीं। वो नई आवाज़ कह रही थी, माइक हरारे, तनवीमी नींद सोने से पहले मेरी आवाज़ और लहजे को अपने जहन में नक्श करो। अभी जो भी अमल हुआ है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है, क्योंकि टेरी एडम, मार्टिन रसल और दूसरे तमाम यहूदी टेलीपैथी जानने वाले मेरे मामूल और ताबेदार हैं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते हैं और ना ही मेरी सोच की लहरों को महसूस करते हैं। तुम ये भी जहन नशीन कर लो कि मेरा नाम दाऊद मंडोला है। मैं खुफिया यहूदी तंजीम का असल पुरअसरार सरबराह हूँ। तुम तनवीमी नींद पूरी करने के बाद मेरा नाम और मेरा तनवीमी अमल भूल जाओगे। मेरी सोच की लहरों को अपने अंदर कभी महसूस नहीं करोगे। दाऊद मंडोला बोल रहा था। मैं, सलमान और जे मॉर्गन सुन रहे थे और हैरान हो रहे थे कि इस खुफिया यहूदी तंजीम के कितने पुरअसरार सरबराह हैं। इस बेचारे माइक हरारे को अपना मामूल समझकर एक के ऊपर एक सरबराह चला आ रहा था और हम सोच रहे थे कि क्या इसके बाद भी कोई और हरारे के दिमाग में टपकने वाला है। हमें इसका इल्म पहले नहीं था कि कोई दाऊद मंडोला नामी यहूदी ट्रांसफॉर्मर मशीन से निकलकर सुपर मास्टर वगैरह को धोखा देकर यहूदी कौम की खिदमत करने इसराइल चला आया है। जब वो काहिरा में सानी से टकराया था और उससे भागता फिर रहा था, तब हमें दाऊद मंडोला का नाम मालूम हुआ। इसके बाद भी हम दाऊद मंडोला की पूरी हिस्ट्री अच्छी तरह नहीं जानते थे कि वो कौन है और किस तरह इसराइल आकर खुफिया यहूदी तंजीम का पुरअसरार सरबराह बन गया है। मंडोला का तरीक़ाकार बता रहा था कि तमाम यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले और उस तंजीम के तमाम एडम ब्रदर्स हत्ता के एक्सरे मैन मार्टिन रसल भी अपने किसी सरबराह को नहीं जानते थे। सिर्फ ब्रेन एडम को ये मालूम था कि उनका एक पुरअसरार सरबराह मार्टिन रसल है। मंडोला बड़ी देर तक हरारे के अंदर रहा और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इत्मीनान हासिल करता रहा कि हरारे वाकई उसका मामूल और ताबेदार बनने के अलावा खुफिया यहूदी तंजीम का वफादार बन चुका है
اور خود کو ایک کٹر یہودی سمجھ رہا ہے۔ اس نے آخر میں اسے تنویمی نیند سونے کا حکم دیتے ہوئے کہا، اب تم آرام سے سوتے رہو، تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ میں اس تنظیم کا سب سے بڑا اور خفیہ سربراہ ہوں۔ تنویمی نیند سے بیدار ہو کر تم میرا نام اور میرا عہدہ بھول جاؤ گے۔ تمہارا دماغ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا اور تم غیر شعوری طور پر میرے معمول اور تابعدار بنے رہو گے۔ پھر حرارے کے اندر خاموشی چھا گئی۔ میں نے جے مورگن اور سلمان سے کہا، تم دونوں اب پارس کے پاس جاؤ۔ تنویمی عمل کا جو طریقہ کار یہاں دیکھا ہے اس کے مطابق میرے بیٹے کو مائک حرارے بناؤ، اور سلمان تم میری آواز اور لہجے میں عمل کرو گے تاکہ وہ مائک حرارے بننے کے باوجود میری سوچ کی لہروں کو کبھی محسوس نہ کرے اور میری ہدایات پر عمل کرتا رہے۔ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، تم سلطانہ کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ دونوں چلے گئے۔ سلطانہ آ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ حرارے کے دماغ میں خفیہ یہودی تنظیم کے اب تک کتنے سربراہ آ چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ داؤد منڈولا کے بعد بھی کوئی آتا ہے یا نہیں، اس لیے تم یہاں آدھے گھنٹے تک رہو۔ کوئی آئے تو مجھے فوراً اطلاع دینا، میں آدھے گھنٹے بعد آ جاؤں گا۔ دوسری طرف پارس پلاسٹک سرجری کے بعد مکمل مائک حرارے بن چکا تھا۔ اب اس پر تنویمی عمل کے سلسلے میں بڑی محنت کی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پہلے تو یہ حکم نقش کیا جا رہا تھا کہ وہ ایکس رے مین مارٹن اور داؤد منڈولا کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے بھی یہ یاد رکھے گا کہ وہ خفیہ یہودی تنظیم کا ظاہری وفادار بن کر ان کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے، اور جیسا کہ جناب تبریزی صاحب کے روحانی عمل کے مطابق کوئی اس کے چور خیالات کو پڑھ نہیں سکتا ہے، اسی طرح مائک حرارے بننے کے بعد مارٹن رسل اور داؤد منڈولا اس کے چور خیالات کو نہیں پڑھ سکیں گے۔ وہ دونوں سربراہ بظاہر اس کے عامل رہیں گے اور وہ معمول بن کر ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہے گا، لیکن در پردہ اس کا اصل عامل اس کا باپ فرحاد علی تیمور رہے گا۔ وہ کسی کوڈ ورڈز کے بغیر اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا اور باپ کی ہدایات پر عمل کرتا رہے گا۔ میں آدھے گھنٹے کے بعد حرارے کے پاس سلطانہ کے دماغ میں آیا۔ وہ بولی، میں مسلسل یہاں ہوں اور ابھی تک میں نے کسی اور عامل کی آواز نہیں سنی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس خفیہ یہودی تنظیم کا اصل پراسرار سربراہ داؤد منڈولا ہے۔ اب تم جاؤ، جب پارس پر تنویمی عمل مکمل ہو جائے تو اسے اور مائک حرارے کو اپنی اپنی جگہ 2 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے دیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہم حرارے کی جگہ پارس کو پہنچائیں گے اور حرارے کو ایک خفیہ اڈے میں پہنچا دیا جائے گا۔ سلطانہ چلی گئی۔ تل ابیب میں سمندر کے کنارے ایک خوبصورت سا بنگلہ بنا ہوا تھا۔ وہ بنگلہ بظاہر ایک بہت بڑے یہودی تاجر کا تھا، لیکن اصل میں اس کے اندرونی حصے کے تہہ خانے میں خفیہ یہودی تنظیم کا آپریشن تھیٹر تھا، جہاں اس وقت مائک حرارے تنویمی نیند پوری کر رہا تھا۔ اس بنگلے کو باہر سے خالی اور ویران ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن آہنی گیٹ پر 2 مسلح پہرے دار تھے۔ بنگلے کے اندر 4 اور تہہ خانے کے اندر حرارے کے پاس 2 مسلح گارڈز مستعد کھڑے رہتے تھے۔ وہاں ان کی کل تعداد 6 تھی۔ 2 باہر تھے، جیسا کہ ایک بند اور ویران عمارت کے محافظ کے طور پر ہوا کرتے ہیں۔ باقی 6 گارڈز اندر چھپے ہوئے تھے۔ اس طرح کسی دشمن کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ مائک حرارے کو اس بنگلے کے اندر رازداری سے رکھا گیا ہے۔ انہیں صرف تل ابیب میں رہنے والے امریکیوں اور سپر ماسٹر کے سراغ رسانوں سے اندیشہ تھا کہ وہ اپنے ملک کے شاطر ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک حرارے کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اگرچہ اسرائیلی حکام نے امریکہ سے وعدہ کیا تھا کہ زخمی حرارے کی طبیعت سنبھلتے ہی اسے واپس بھیج دیا جائے گا، اس کے باوجود اسرائیل اور امریکہ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال ہم اس بنگلے کے مسلح گارڈز کے دماغوں میں جگہ بنانے کی راہیں نکال چکے تھے۔ وقت آنے پر ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ان تمام مسلح گارڈز کے دماغوں پر مسلط ہو کر پارس کو وہاں پہنچا کر حرارے کو وہاں سے لا سکتے تھے، اور ہم اس منصوبے پر 2 گھنٹے بعد عمل کرنے والے تھے۔ اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے 2 بڑی خبریں منظر عام پر آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ وزیر علی کو اسلام آباد میں پہنچے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ تھی کہ اپوزیشن کے لیڈر کی ایک عالی شان کوٹھی، جس کی لاگت 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تھی، وہ بموں سے اڑا دی گئی۔ ایسا کرنے والے دشمنوں کا خیال تھا کہ اس طرح اپوزیشن کا لیڈر کوٹھی کے ساتھ فنا ہو جائے گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ لیڈر اپنی دوسری کوٹھی میں تھا، اس لیے وہ زندہ بچ گیا ہے۔ علی تیمور جو وزیر علی بن کر پاکستان آیا تھا، اس نے خود کو ہی اغوا کیا تھا۔ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حکومتی پارٹی کے لیے وزیر علی ایک کمزور مہرہ تھا۔ اگر اسے اغوا کر کے قتل کر دیا جاتا تو وہ کمزور مہرہ مردہ بن کر اپوزیشن والوں کے لیے مصیبت بن جاتا،
اپوزیشن پر الزام دھرا جاتا کہ انہوں نے بیچارے وزیر علی کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ علی تیمور کو اغوا کیا جاتا وہ خود ہی روپوش ہو گیا۔ اپوزیشن کے لیڈر کو پتہ چلا کہ دوسری صبح وزیر علی کے اغوا کا الزام اس کی پارٹی پر عائد ہونے والا ہے تو اس نے فوراً جوابی کارروائی کی اور اپنی مہنگی کوٹھی کو اپنے ہی کارندوں کے ذریعے بموں کے دھماکوں سے کھنڈر بنا دیا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔